اور سب سے پہلے بات کریں شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شرکت کے لیے چینی وزیر اعظم لی چیانگ پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ کی شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شرکت اور دورہ پاکستان پر اپنے وفد کے ہمراہ اسلام آباد پہنچے ہیں، جہاں بچوں نے انہیں گلدستہ پیش کیا ہے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور دیگر اعلیٰ حکام نے چینی وزیر اعظم کا نور خان ایئر بیس پر استقبال کیا ہے۔ چینی وزیر اعظم کو پاکستان آمد پر 21 توپوں کی سلامی دی گئی ہے اور انہیں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا ہے۔ چینی وزیر اعظم کی آج صدر زرداری سے ملاقات متوقع ہے اور وہ دیگر اعلیٰ شخصیات سے بھی ملاقاتیں کریں گے، جبکہ معزز مہمان گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا ورچوئل افتتاح بھی کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ چینی وزیر اعظم لی چیانگ کا ایس سی او سربراہ کانفرنس میں شرکت پر خوشی کا اظہار۔ کہتے ہیں پاکستان اور چین آہنی بھائی ہیں، دونوں ممالک نے ہمیشہ ایک دوسرے کی حمایت کی ہے۔ پاکستان ابھرتی ہوئی منڈی اور بڑا مسلم ملک ہے۔ پاک چین دو طرفہ تعلقات دنیا میں عمدہ مثال ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چین کے وزیر اعظم کو اس سی او اجلاس میں شرکت پر آمد پر خوش آمدید کہا۔ دونوں ممالک کے درمیان باہمی فائدہ مند تعاون کی نئی راہیں بھی تلاش کریں گے۔ پاک چین آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ علاقائی استحکام اور خوشحالی کی سنگ بنیاد ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم ایس سی او اجلاس میں شرکت کرنے والے ممالک کے وفود نے سربراہوں کے نام جاری کر دیے ہیں۔ وزارت خارجہ کے مطابق چینی وزیر اعظم لی چیانگ ایس سی او کانفرنس میں اپنے وفد کی قیادت کریں گے اور بھارتی وزیر خارجہ سبرامینیم جے شنکر بھارتی وفد کی قیادت کریں گے، جبکہ ایرانی وفد کی قیادت ایرانی اول نائب صدر محمد رضا عارف کریں گے۔ وزارت خارجہ کے حکام نے بتایا ہے کہ بیلاروس کے وزیر اعظم رومان گولوچینگو اپنے ملک کے وفد کی سربراہی کریں گے، جبکہ قازقستان کے وزیر اعظم اولراز بیک تینیوف اور کرگستان کے چیئرمین کیبنٹ آف منسٹر زاپاروف اپنے اپنے وفد کی قیادت کریں گے۔ وزارت خارجہ کے مطابق تاجکستان کے وزیر اعظم گوہر رسول زادہ، ازبکستان کے وزیر اعظم عبداللہ ارپیوف اور پاکستان آنے والوں میں شامل ہیں، اپنے وفود کی قیادت وہ بھی کریں گے، جبکہ ترکمانستان کے ڈپٹی چیئرمین آف کیبنٹ منسٹر راشد میردیوف پاکستان آئیں گے، جبکہ وزارت خارجہ کا بتانا ہے کہ ایس سی او کے سیکرٹری جنرل چانگ مینگ، ایس سی او ڈائریکٹر ایگزیکٹو کمیٹی ارسلان مرزایوف، ایس سی او بزنس کونسل کے چیئرمین بورڈ عاطف اکرام شیخ بھی اجلاس میں شرکت کریں گے، جبکہ ایس سی او انٹر بینک یونین کے چیئرمین کونسل ماروت یلی بائف بھی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے حوالے سے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ اسلام آباد کو دلہن کی مانند سجا دیا گیا۔ شہر کی اہم شاہراہوں، چوک چوراہوں پر سبز ہلالی رنگوں کی خوبصورت منظر کشی کی گئی ہے۔ سرکاری عمارات کے ساتھ ساتھ نجی کاروباری مراکز کو بھی سجایا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے اسلام آباد کو سجانے کی ویڈیو جاری کی گئی ہے۔ وفاقی دارالحکومت کی تمام مرکزی سڑکیں بند۔ سربراہی اجلاس کی میزبانی کرنے والے ریڈ زون سمیت پورے اسلام آباد میں جا بجا خوش آمدید کے بینر اور بین الاقوامی سربراہان کی تصاویر آویزہ کی گئی ہیں۔
अब कुछ खबर दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अगस्त 2023 में सिविल सोसाइटी ने मिसाक जमहूरियत 2 का मुतालबा किया है। सिविल सोसाइटी की मिसाक जमहूरियत 2 के मुतालबे का मकसद मिसाक के नामुकम्मल एजेंडे को पूरा करना था। वफाकी आईनी अदालत के क़याम के हवाले से एक्स पर अपने पैगाम में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सिविल सोसाइटी के मिसाक जमहूरियत 2 के मुतालबे का मकसद बानी PTI जनरल पाशा जनरल फैज़ के जमहूरियत पर हमलों के नतीजे में खोए हुए मकाम को दोबारा हासिल करना था। सिविल सोसाइटी की 2023 की सिफारिशात में एक वफाकी आईनी अदालत का क़याम भी शामिल था, जिसकी तायद भी की गई थी। जबकि बताते चलें कि PTI सेंटर्स ने भी की थी। अदालती इस्लाहात के लिए सियासी जमातों के साथ साथ सिविल सोसाइटी में भी इत्तफाक राय पाया जाता है। मौजूदा सियासत या किसी फ़र्द से मुतालिक अपनी ज़ाती राय को आईनी अदालत की जायज़ ज़रूरत पर हावी ना होने दें। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डी चौक पर एहतजाज के लिए तैयारियां मजीद तेज कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने आज वज़ीर आला हाउस पेशावर में अहम इजलास बुला लिया। पंद्रह अक्टूबर का एहतजाज मनसूख कराने की कोशिश। हुकूमत बैरिस्टर गौहर अली, मोहम्मद खान और हामिद रजा को 15 अक्टूबर को डी चौक पर तहरीक इंसाफ का एहतजाज वापस लेने के लिए बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दे सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी PTI से जेल में मुलाकात के लिए वजारत दाखिला को दरख्वास्त दे दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने वजारत दाखिला को लिखा दरख्वास्त में कहा कि आखिर बार हमारे वकला की बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात 3 अक्टूबर को हुई थी। दरख्वास्त के मतन के मुताबिक बानी PTI से फौरी मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए और मेरी और साहबजादा हामिद रजा की मुलाकात कराई जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के मौके पर 15 अक्टूबर को डी चौक में एहतजाज करने का ऐलान कर रखा है। तहरीक इंसाफ ने शर्त लगा रखी है कि बानी PTI से मुलाकात करा दें तो 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज मुलतवी कर देंगे। अब आपको बताएं कि मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा है कि पुरअमन एहतजाज की कॉल पर लीगी दरबारी वज़रा की चीखें फिर शुरू हो गई हैं। ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल के बयान पर रद्द अमल देते हुए बैरिस्टर सैफ का कहना था कि पुरअमन एहतजाज हमारा जमहूरी और आईनी हक है। जाली हुकूमत की PTI एहतजाज से काम पे टांग रही हैं। उन्होंने कहा कि बानी PTI के खिलाफ जाली मुकदमात के खात्मे और रिहाई तक एहतजाजी सिलसिला जारी रहेगा। जाली हुकूमत के ओछे हथकंडे उल्टा उनके गले पड़ेंगे। उनका कहना था कि ख्वाजा आसिफ एक खातून से हारे और फॉर्म 47 पर वजीर बने हैं। खुद साख्ता अरस्तु एहसन इकबाल CPAC पर सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। जाली हुकूमत के दौर में मुल्क की मईशत का पहिया जाम हो चुका। फिस्तायत के होते हुए मुल्क की तरक्की नामुमकिन है। सूबाई मुशीर इत्तलात ने मजीद कहा, शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में जाली हुकूमत अपनी सियासी दुकान चमकाने की नाकाम कोशिश कर रही है। मौशी और सियासी मसाइल की जड़ जाली हुकूमत है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि हुकूमत को PTI रहनुमाओं और उनके कायद की मुलाकात करवानी चाहिए। ख्वाजा साद रफीक ने मशवरा देते हुए कहा कि हुकूमत को एहतजाज के उज़र ख़त्म कर देनी चाहिए। आपको बताते चलें, उन्होंने कहा कि गैर मुल्की मेहमानों की पाकिस्तान आमद पर झगड़ा करना PTI की हमेशा से रिवायत रही है। साबिक वफाकी वज़ीर का कहना है PTI को एहतजाज की कॉल गैर मशरूत तौर पर वापस लेनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि हुकूमत तहरीक इंसाफ के रहनुमा और उनके कायद की मुलाकात करवा भी दें तो भी PTI एहतजाज का कोई और बहाना निकाल सकती है।
आपको बताएं कि पीटीआई के सीनियर रहनुमा हमाद अजहर ने अज़्म का इजहार किया कि मेरी जान बानी पीटीआई से ज्यादा कीमती नहीं। 15 अक्टूबर को एहतजाज की क़यादत खुद करूंगा। एक्स पर जारी वीडियो पैगाम में पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर ने कहा कि सबसे ज्यादा खतरा मुझे है। कहा जाता है अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो मुझे कत्ल कर दिया जाएगा या फिर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा, लेकिन मेरी जान बानी पीटीआई की जान से ज्यादा कीमती नहीं। अगर मुझे इस मर्द कलंदर के लिए, पाकिस्तान के लिए और अल्लाह की जमीन के लिए अपनी जान का नजराना देना पड़ा तो मैं दूंगा। रहनुमा पीटीआई का कहना था कि अगर बानी पीटीआई तक हमें रसाई नहीं दी जाती तो मैं 15 अक्टूबर को खुद एहतजाज की क़यादत करूंगा। इस एहतजाज में मैं अकेला नहीं, पुरअमन लेकिन पुरआज़्म अवाम का समंदर मेरे साथ होगा। हमाद अजहर ने मजीद कहा, बानी पीटीआई हमारी रेड लाइन है जो इस कौम को मायूसी और दलदल से निकाल सकता है। पीटीआई के तमाम टिकट होल्डर और ओहदेदारान 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचे। जो नहीं पहुंचेगा वो इस दिन के बाद टिकट होल्डर और ओहदेदार नहीं रहेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि कराची के, आपको बताते चलें, शहरी अजियत का शिकार हैं और शहर एक खंडर का मंजर पेश कर रहा है। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं और सीवरेज का निज़ाम बोसीदा है। उन्होंने कहा है कि सिंध में करप्शन का निज़ाम चल रहा है जिसे सिस्टम कहा जाता है और इस पर कोई हाथ नहीं डाल सकता क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक करप्शन ही करप्शन है। हुकूमत की बद इंतज़ामी है और अरबों रुपए का काम बारिश में बह गया। निचली सतह तक इख्तियारात नहीं पहुँचाए जा रहे। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा अभी ज़िमनी इंतखाबात में वोटों को रीकाउंट हो रही थी कि हुकूमती केसेस, आपको बताते चलें, उन्होंने कहा कि बैलेट बॉक्सेस में भी जो मामलात हैं उसके साथ वो उठाकर ले गए थे बैलेट बॉक्स। यही लोग तो हैं जिन्होंने कराची की मेयरशिप भी कब्जे में हासिल की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 5 IPPs के कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किए। मैं इन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने रावलपिंडी में धरना दिया। उनकी बदौलत ही हुकूमत ने IPPs से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया। आपको बताएं कि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा है कि एहतजाज शहरियों के हुकूक मुतासिर करने या उनका हक नहीं देता। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एहतजाज का हक किस हद तक हासिल है, आइन में क्या हक है, एहतजाज की शक्ल क्या हो सकती है, क्या वो पुरअमन होगा, क्या एहतजाज में पूरे के पूरे शहर मुहासरे में आ जाएंगे। इस हवाले से हुकूमत को क्या लाइन ऑर्डर में क्लियर फैक्ट दें। लॉ एंड ऑर्डर सूबे की जिम्मेदारी होती है, वो वहां से पूरी पुलिस लेकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करते हैं। मलिक अहमद खान ने कहा कि बतौर स्पीकर पंजाब असम्बली लीडर ऑफ द अपोजिशन से भी कहा, लीडर ऑफ अपोजिशन बता दें आपके एहतजाज की शक्ल क्या हो सकती है। क्या आपका एहतजाज 9 मई जैसा होगा? रेडियो पाकिस्तान पेशावर की इमारत जलाई जाएगी? शोहदा के मुजस्समों की बेहुरमती की गई? क्या ये पुरअमन एहतजाज है? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना था कि चीनी सदर का 2014 में दौरा पाकिस्तान था। चीन के सदर आ रहे थे लेकिन एक सियासी जमात के लोग टेंट लगा कर बैठे हुए थे। लॉ एंड ऑर्डर किसी को एहतजाज के लिए कानून की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देता। सड़कों को रोका जाता है, अवाम की जिंदगी मुतासिर की जाती है। गवर्नमेंट अपना हक इस्तेमाल करते हुए इस खिलाफ वर्जी को रोकेगी। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने एक बार फिर रेड लाइन BRT मंसूबा टाइमलाइन से पहले मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया है। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि रेड लाइन BRT मंसूबा कराची के लिए गेम चेंजर है। हमें हर हाल में इस मंसूबे की बर वक्त तकमील को यकीनी बनाना होगा। शर्जील इनाम मेमन ने वाज़े कहा कि रेड लाइन BRT सिंध हुकूमत के लिए अवलीन तरजीह है। काम में तेज़ी लाई जाए और अवामी मंसूबा टाइम लाइन से पहले मुकम्मल किया जाए। बुलेटिन का सिलसिला जारी है मगर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे